Welcome back to the Career Compass, Shulini's monthly webinar series where we bring senior leaders to discuss trending topics, emerging developments that are happening in corporate India, and the mindset and skills that HR leaders are seeking in the next generation of professionals. So today we have a very, very interesting speaker, and as we turn our focus to one of India's most vital and inspiring sectors, which is power, bijli, electricity, as we call it. Electricity is now recognized as a basic human right, something we rely on almost every day. Yet, it's often the first thing people notice when it goes missing. So behind the lights that illuminate our homes, our streets, and industries is decades and decades of hard work by engineers, visionaries, and workers who have transformed challenges into opportunities, powering the dreams of a billion people. As a matter of fact, when I was chatting with Mr. Lal, he was, telling us about, how India managed the COVID crisis from an electricity perspective. And we have here, as mentioned, Mr. Uttam Lal, who's the Director for Personnel at NHPC Limited, India's premier hydropower organization. Mr. Lal has over 3 decades of experience, including more than 20 years at NTPC. Mr. Lal has led transformative initiatives in leadership development, industrial relations, and corporate social responsibility. A believer in people-powered progress, he inspires the next generation to view renewable energy not just as a career, but as a national mission. We are honored to have Mr. Lal with us today and share his insights on the future of India's power sector and how young, aspiring minds like yours will be the leaders driving this transformation. Thank you so much for joining us, Mr. Lal. With that, I pass it over to you. Of course, I'm here to help as well, but over to you. Thank you. Thank you, Dipit. Namaskar and good morning to you all. In fact, the topic is about power sector and the AI induction in power sector. So before that, let me just give a brief about the power sector in the Indian scenario of power sector. Around as if now we have a total installed capacity of 490,000 or 490 gigawatts. With the declaration of 2070 net zero, so now the renewable sector, which consists of hydro, solar, wind, and other small developments still in the research phase. So it's coming up very fast in India, and we are ahead of the schedule what we have promised to COP26 that will be net zero. But still, the backbone of Indian power sector is fossil fuel. I hope you know the fossil fuel. The major component is coal, then your lignite, uh, diesel. Diesel is generally the DG sets, and the gas. Gas is still very costly. So still the major power provider to the company or to the nation is coal. And with the development of very fast growth in the hydro sector, NHPC, my company, in fact, I have a blend of thermal as well as hydro. So thermal, I spent about more than 32 years, and then as a regionally, the director position is appointed by Government of India. So I switched over to NHPC. NHPC is a 100% green power sector. We don't generate a single ounce of any greenhouse gases, which you may be aware. I'll just let you know about net zero also. And we are progressing very fast. We are, I think, on this 29th, we are coming up with 3 units of the largest hydro, 2,000 megawatts in Arunachal. As far as NHPC is concerned, we are mostly in hilly terrains with definitely the climatic conditions are very tough for extreme climatic conditions. But what I used to call my boys, generally I used to call them green soldiers, because we have in Leh and Ladakh, people used to tour the place as a tourist place. My boys stays over there. They run the power plant, and you will be surprised to know that before NHPC, there was no
regular power supply. And once we reached over there, we set up two plants. One is a 45 megawatts, one is a 44 megawatts. And during the winter, for about 4 months, due to the heavy snowfall and everyone gets cut off. But yes, still the army and the NHPC engineers or the executives or the workmen, they stays over there. So we create all sort of facilities that I'll just inform you, because these are the challenges as a hydro sector we face. Now, as far as this thing is concerned, we are about 8,200 or 8.2 gigawatt company. And for civil engineers or for core sector engineers, if any one of you have ever seen a dam, you might have seen as a visitor or a tourist, or you might have enjoyed once the arch gate is open. But for any, you ask any civil engineer, they will say the toughest job is to construct a dam on a flowing river. Generally, I used to tell them that it is easier to build a Burj Khalifa. Agar aapke paas, if you have a plot of land without any disturbances or the social pressure, you go deep inside the earth as much as you can, jitna aapko upar jana hai, and you can have built a structure. Generally, it's on a steel structure, but whereas a dam is concerned, the very first thing is that you have to divert a river without disturbing the ecological or environmental factors. Once you divert, then you start constructing either a coffer dam, that is a mud and stone dam, or a concrete gravity dam. Generally, the cement dam which you see, that is a concrete gravity dam. And once the dam is ready, then you again stop the diversion channel and the river goes normally. And there is a certain level you have to maintain. For that, you have to sacrifice your generation to maintain the flora and fauna. So these are the challenges, and it takes time. It takes time. You'll be surprised to know, and we have done a world record. World record in the sense, आप कुल्लू मनाली तो जानते होंगे. You might have going कुल्लू मनाली, Manikarn. People used to go visit, and बहुत चीजें होती हैं. The Israelis come over there, stay over there. But कुल्लू मनाली में the river flows is Parvati. Parvati pe we are having our dams and we generate power. But can you imagine that a tunnel which at one point of time, Delhi metros, 4 metros can run at one point of time. So you can imagine the diameter of that is called headrest tunnel. जिससे पानी आता है to the, you might have seen in the childhood that we used to call it, the local used to call it rahat. It's not water turbine, it's a wooden structure, but it generates power. So 31.5 kilometer HRT headrest tunnel. The engineers, the workmen, they have constructed, and आप surprised होंगे once you go inside a what we used to say, any hill or any mountain, there are a lot of geological surprises which I have never seen during my thermal days. Thermal days may you go for coal mining, which is being done by the largest mining company, Coal India. But here we used to go inside the mountains or tunnels. So the very first thing you get is methane gas, and it's highly inflammable. और एक छोटा सा भी arc by chance of a welding arc हो गया, तो it blasts like anything. So that is one thing. Stone shooting from the mountains. As if आपको लगेगा कि एक AK-47 चल रहा है, उसमें से number of bullets are coming. So these are the challenges. And the GLOF, you may be aware that Global Lake outburst flood. I'll tell you how we face the GLOS. So these are the difficult situations or geological situations or environmental situation. In addition to the extreme cold, my boys are staying at -20, -30. But if you ever get a chance, visit those sites. जब तक आप अपने कंट्रोल रूम में हैं, कंट्रोल रूम को वी यूज्ड टू कॉल इट अ कॉकपिट. अगर आपने देखा होगा बचपन में स्टार ट्रेक जो टीवी सीरियल आता था, Captain Nimoy used to sit on a chair and there were a lot of lights are coming and hooter is coming, everything is coming. So similarly, the control room of a power sector is
like a cockpit of a plane or a space shuttle. So we used to call them pilots, fighter pilots. They are all engineers. They are all good engineers, and mostly the civil engineers from IITs or mechanical. They if they want to build their career, they generally come to us because construction of a dam is something beyond imagination. Until unless you don't get involved, you will never come to know. And many of our senior executives, even despite after superannuation, that is after attaining the age of 60, their services are being hired by many private sectors as a consultant or advisors or many uh, companies abroad. But now, as a HR guy, I'll tell you the challenges which we face. Generally, my product is everywhere. So, power sector people are not aware. If I and generally the very famous company is my previous one, that is NTPC. So, if I were introduce myself as NHPC, so people used to, acha NTPC, then I have to clear it. And it is NHPC. Earlier, it was National Hydropower Corporation. So if any one of you raises in between wanted to ask any question, you can ask. So NHPC earlier it was National Hydropower Corporation Limited, where when we were only in hydro generation. Now we have moved into, because hydro is also a renewable sector, so we have moved into solar and wind sector. So that is why now it is NHPC. जब हम पावर सेक्टर लगाते हैं तो हम सब हमारा कोई भी पावर सेक्टर यू टेक, आप थर्मल ले लें या आप हाइड्रो सेक्टर ले लें, उसमें आपको सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है दैट इज सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन। और साथ ही साथ जो वहां पर जो आपके जो लोग हैं, बिकॉज जनरली दी हाइड्रो सेक्टर में देर इज एक चीज कहलाता है, जब आप किसी नदी के ऊपर बांध बनाते हैं तो एक कमांड एरिया आता है। कमांड एरिया इन द सेंस कि जो जो एरिया सबमर्जेंस में है वो तो नदी है, उधर नहीं, लेकिन जो बाहर का एरिया आता है, जो डैम एरिया जहाँ पे आता है, उसका एरिया जब फैलता है तो कुछ विलेजेस वगैरह भी आपके एंट्रैप्ड हो जाते हैं इन वाटर। सो आपको ये स्टडीज पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद आप एक पहले एक PFR विद प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, फिर DPR सबमिट करते हैं। वो जब अप्रूव होता है तब जाकर आप अपना स्टार्ट करते हैं, 0 डे स्टार्ट होता है। मगर इसके पहले जो होता है जनरली हम पहले आपका इंडिया में सेंट्रल सेक्टर था ही नहीं। 1975 में दो कंपनियां आई थी। एक आया था NTPC 7 नवंबर, तो हम जुड़वा भाई कहलाते हैं अपने आप को कि दोनों अलग अलग रास्ते चले गए। और एक आया था NHPC जो कि हाइड्रो के लिए आया था। दोनों 7 नवंबर 1975 को बने थे, और अभी हमारा रेजिंग डे आने वाला है, हमारा गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बोथ दी कंपनीज NTPC एंड ये। तो NTPC को जो भारत सरकार ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, बिकॉज आपका ग्रेजुअली जो स्टेट में जो थर्मल पावर थे वो धीरे धीरे सिक होते चले जा रहे थे, और आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोड शेडिंग बढ़ गई थी। हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना लाइव है, इतना वाइब्रेंट है, मैं ज्यादा लोगों को बताता हूँ, और इट क्रिएट्स जेलसी। अगर आपके घर में जब लाइट चली जाती है ना, तो आप दौड़ के पहले देखते हैं कि पड़ोसी के घर में लाइट है, नहीं है तो आप खुश होते हैं। और अगर पड़ोसी के घर में लाइट है तो आप पहले अपने घर में यहाँ वहाँ भाग दौड़ मचाते हैं। फाइनली अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो फिर नीचे भागते दौड़ते हैं। लेकिन ये है। और दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है, चूंकि हमको एक और हमारे साथ है कि पावर सेक्टर एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। हम बहुत ज्यादा मार्केटिंग वगैरह नहीं कर सकते हम बहुत ज्यादा, बिकॉज हमारा वी कैन नॉट डायरेक्टली सेल टू द कंज्यूमर। हम सीधा ग्राहक को बिजली बेच नहीं सकते। हम जनरेट करते हैं और फिर डिस्कॉम्स आता है जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर कहलाता है। वो उनके पास पावर जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर, जनरली ये स्टेट सेक्टर होता है, और हमारा PPA साइन होता है, पावर परचेज एग्रीमेंट कहलाता है। सो PPA वन साइंड, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल। Yes, Mr. Lal, you हाँ। are all तो good. हाँ, सो जब PPA साइन हो जाता है तो देखिए, अगर आप ध्यान देते होंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा भी पेपर वगैरह पहले देखते होंगे, सो जनरली होता क्या था कि पावर को हम बिल्कुल बांट देते थे कि ठीक है आप ले लो जी फ्री, आप ले लो जी फ्री। एंड द स्टेट सेक्टर वो धीरे धीरे सिक हो गया, क्योंकि अगर आप अपना प्रोड्यूस जनरेट तो कर रहे हैं पावर, बट आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आखिर लोगों को सैलरी कहाँ से आएगी? कुर्सी टेबल देके तो हम नहीं चला पाएंगे। सॉरी, कुर्सी ले जाओ या ये ले जाओ।
तो फिर जब सेंट्रल सेक्टर आया तो एक लेटर ऑफ क्रेडिट का सिस्टम बना कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट काट के पे कर देगी, तब जाके ये इम्प्रूव हुआ। और अब तो हमारा अपना सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम अपना एक फिक्स हम रिबेट भी देते हैं कि इफ यू पे इन टाइम तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और आप जस्ट ध्यान देना अपने बिजली के बिल पे, बिजली के बिल पे भी जो आता है उस पे रहता है कि अगर बिफोर द ड्यू डेट आप पे करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, क्या कहते हैं, यू विल गेट अ रिबेट ऑन इट। तो ये चीजें हैं पावर सेक्टर की। ये माइनर चीजें हैं जो पावर, लेकिन अब पावर सेक्टर आपका बहुत ज्यादा ग्रेजुअली स्ट्रांग हो चुका है। और पावर कट्स आर देयर फॉर टेक्निकल रीजंस, ये नहीं कि जनरेशन बंद हो गया। बिकॉज अगर जब हम छोटे होते थे तो पता चलता था, मैं क्लास 2 3 में, मैं छत्तीसगढ़ में पला बड़ा, भिलाई में, तो कई बार एक एक दिन लाइट चली जाती थी। तो उस टाइम जो स्टेट गवर्नमेंट का प्लांट था उसमें कुछ मेजर ट्रिप हो जाता था। तो उस तरह की चीजों को चेंज किया और कई थर्मल जो पावर सेक्टर्स के यूनिट्स थे उसको गवर्नमेंट ने एनटीपीसी को दिया, जिसमें अगर यूपी में जो लोग रहते हैं वो फिरोज गांधी ऊंचा थर्मल पावर, जो कि बिल्कुल सिक था। पावर सेक्टर का एक नापने का होता है पीएलएफ, सो वो हार्डली 16% पे चल रहा था प्लांट, जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी थी। और द डे एनटीपीसी ने उसको टेक ओवर किया, चेंज ओवर किया, वो विद इन ए मंथ वो 80% पे पहुंच गया। सिमिलर इज द स्टोरी इन उड़ीसा तालचर। अब हम आपको मैं हाइड्रो में ले आता हूँ। हाइड्रो में काफी चेंजेस हुए बीच में, आप लोग अगर ध्यान दिए हों शायद आप लोग उस टाइम नहीं ध्यान दे रहे होंगे। कई सेक्टर्स बोथ इन थर्मल में और हाइड्रो में जंप मारे थे। और हाइड्रो में क्या, हाइड्रो बहुत टफ है, हाइड्रो बहुत टफ है। हाइड्रो में सबसे पहला जो आप करते हैं, आप वहाँ का लोकल जो पॉपुलेशन है उसका एक सर्वे करते हैं, क्या डिस्टरबेंस होगा। मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जो लैंड एक्विजिशन होता है ना, लैंड जिसमें हम जमीन लेते हैं, आप अगर अपने घर के लिए जमीन लेते हैं ना, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो वो चीज आपको पता नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप, जो लोग कोठी बनाते हैं, दिल्ली में हम उसको कोठी कहते हैं अगर वो मकान होता है तो जब आप जमीन लेते हैं तो उसमें कई चीजें आपको देखनी पड़ती हैं कि लैंड इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, ऑल टैक्सेस आर पेड, दिस एंड दैट। बट आपको ये नहीं देखना होता है, क्योंकि लैंड सरकार के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है, कि अब इसमें मेरे को कंपनसेशन क्या देना, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट क्या करना। वेयर है जो भी प्लांट्स लगते हैं हाइड्रो में, जब लगते हैं, अगर गांव सबमर्ज होता है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ता है। कंपनसेशन देना पड़ता है आपको, एक पुनर्वास और पुनर्स्थापन बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। और आपका एक बहुत अगर कोई भी बाई चांस पावर सेक्टर से कोई हमारा ये हो, जो अभी आपका जो भी मैनेजमेंट का यहाँ पर अध्ययन कर रहा हो, तो वो जानेगा कि जो सबसे पहला टास्क होता है कि बोथ फॉर थर्मल एंड हाइड्रो इज टू गो एंड टेक अप द लैंड। और इसमें जो सबसे पहले जो लोग आते हैं, जैसे नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे उतरे थे, तो वैसे ही जो सबसे पहले लोग जो पहुंचते हैं वो एचआर पहुंचता है और सिविल पहुंचता है। एचआर का काम होता है वो पूरे, हम उसको आरएनआर भी बोलते हैं, आईआर भी बोलते हैं, रिलेशंस भी बोलते हैं। सिविल का काम होता है वो अपने पूरे जो जमीन का लेखा जोखा, अमीन वगैरह होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। और जो हम लोग जाते हैं, हम वहाँ के लोगों से, मुखिया से, पंचायत से, हम उनसे धीरे धीरे बात करते हैं। हमने बहुत अजीब सी सिचुएशन भी फेस की है। कई बार हम घेराव में पड़े रहते हैं, 8 8 घंटे हमको घेर लिया जाता है और प्रोटेस्ट होता है। अगर आप लोग को मैं लेटेस्ट बताऊं, जो कि जिसको हम की मेगा लेवल पे आईआर कहते हैं, किसान आंदोलन में हुआ था नोएडा में। और आजकल क्या होता है कि अगर मेरे को नेता बनना होता है ना, तो मैं 30 साल पहले, माने सपोज आपने एक मकान खरीदा था 30 साल पहले, मैंने आपका 10,000 रुपए दिए थे, ठीक है, आप भी खुश, मैं भी खुश, मैं मकान ले लिया। अब मैंने उस पर 4 मंजिल खड़ा है, 5 मंजिल मकान मेरा है। फिर एक तीसरा आदमी आता है आज 30 साल बाद, वो कहता है कि साहब मैं आपको आज के दिन का रेट दिलवाऊंगा, ये तो आपके साथ, अगर आप जमीन आज बेचते तो। अब देखिए, अगर पैसा अगर किसी को मिले तो आदमी भागता है। उसके बाद वो सबको हुजूम इकट्ठा कर लेता है, खुद नहीं रहते साइड पे, उनको वो भूख हड़ताल पे बैठा देंगे। और भूख हड़ताल पे जब आप बैठेंगे
तो वो पूरा यहाँ पर वो मजलिस जम जाती है, लंगर लग जाता है, कई स्पॉन्सरर्स कई एनजीओ आके वहाँ खिचड़ी और पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाते हैं। बिकॉज मैं तो एक बार फंस चुका हूँ एयरपोर्ट से आते हुए, जब किसान आंदोलन में नोएडा को ब्लॉक किया हुआ था हाईवे, वहां पर तो सब कुछ था इंक्लूडिंग पंप। तो मैं भी चकरा रहा था कि आई हैव नेवर सीन इन माय इंटायर कैरियर इस तरह का स्ट्राइक। तो खैर अब वैसा ही होता है। और जैसे बीच में पूरे एनटीपीसी को घेर लिया गया। हम जम्मू कश्मीर में भी है, जम्मू कश्मीर में जितने मेजर हाइड्रो है और मेजर एनएचपीसी है। और जम्मू कश्मीर में भी एक बार हम लोग को किसी मीटिंग में गए थे, हमारे लोग सीनियर्स इंक्लूडिंग में, तो 15 दिन तक उनको घेर के रखा हुआ था। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो जो पहला जो, बिकॉज ये जो घिराव आप लोग ने, हो सकता है आजकल आजकल मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा आईआर वगैरह पे टच कम है, क्योंकि कोर सेक्टर की ओर इंक्लिनेशन भी नहीं है। मगर अगर कोर सेक्टर में लोग नहीं आएंगे तो आप नहीं चल पाओगे। ना बिजली बनेगी, ना हवाई जहाज उड़ेंगे, ना ट्रैफिक चलेगा, ना रोड बनेंगे, ना ही स्टील इंडस्ट्री आएगी, ना सीमेंट इंडस्ट्री आएगी, तो हम कहाँ तक चल पाएंगे। सो कोर सेक्टर किसी भी कंट्री का जो बैकबोन होता है वो कोर सेक्टर होता है। बाकी ठीक है, बात कर आज आप बहुत तेजी से एआई में जा रहे हैं, आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, बट सुपर सैचुरेशन हो रहा है। बिकॉज मैं अभी 2-3 कंट्री घूम के आया था। इवन दो डेवलप्ड कंट्रीज आर फेसिंग द डर्थ ऑफ कोर सेक्टर इंजीनियर्स, बिकॉज अब उनका जो कोर सेक्टर है वो कोलैप्स कर रहा है। और कोर सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे बाहर बढ़ रही है। बिकॉज जनरली वो मैकेनिकल इंजीनियर भी आईटी का कोर्स करके अब चला जाता था यूएस, और वो आईटी में चला जाता था, बिकॉज कोर सेक्टर में थोड़ा काम मेहनत का होता है। और आप कुछ भी, लेकिन आप, होता क्या है ना कि आप अपने सामने चीजों को खड़ा करते हैं। जब आपके सामने एक बॉयलर खड़ा होता है या एक डैम खड़ा होता है, द डे डैम रोल करता है और बिजली निकलती है ना, वो सेटिस्फैक्शन। और जब आपके आसपास के गांव में एक साथ रात रात में, क्योंकि साथ साथ वो भी स्टेट गवर्नमेंट भी आजकल बहुत एक्टिव हो गए हैं, जब बिजलियां जलती हैं बगल में, और जो एक गांव वालों के जो खुशी होती है ना, वो आप, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मैं अपने इसमें बता नहीं पाऊंगा कितना खुश होते हैं जिनके घर में अगर लैंप या उनके पूरे स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट जल जाता है। तो इस तरह की ये जो है, तो ये आपका इम्पोर्टेंस है। और हर घर बिजली योजना में तो मेरे को अब बहुत कम लगता है कि गांव में बिजलियां नहीं पहुंची है, क्योंकि इसमें हम भी इन्वॉल्व थे और हम गांव गांव तक बिजली पहुंचाए थे। अब मैं आता हूं आपको कि हमारा जो हमारा जो हम हमारे जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, सबसे पहला जो चैलेंज होता है फॉर एनएचपीसी के, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, ये डैम्स हैं। और अगर आप लोग, अगर थोड़ा बहुत वॉर मूवीज पुराने देखे होंगे, अगर देखते होंगे, एक मूवी थी फोर स्टैंड फ्रॉम नेवरन, अंग्रेजी पिक्चर है लेकिन आजकल यूट्यूब में सब हिंदी में अवेलेबल है, आप गन्स ऑफ नेवरन भी हिंदी में देख सकते हैं। तो उसमें एक आर्च डैम दिखाया है, वो थोड़ा सा ना चंद्राकार होता है। और आर्च डैम में अगर बनाना भी बहुत टफ है। एक सीधी सीमेंट की वॉल आप खड़े करते हो और एक हल्का सा सेमी सर्कल वॉल खड़ा करें, अंतर है। वैसा डैम है चमेरा 1। इतनी खूबसूरत है, आप लोग कभी, लेकिन आपको चमेरा से कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं जानबूझ के चमेरा बोल रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, चमेरा है चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा इतनी खूबसूरत जगह है, लोग वहां घूमने जाते हैं और मेरे एम्प्लॉयज वहां पोस्टेड है। और आप सब जानते होंगे डलहौजी। डलहौजी में एक जगह है खजियार। खजियार, अगर मेरे ख्याल से शाहरुख खान की मूवी कुछ कुछ होता है सबने देखी होगी। और वो एक छोटा सा बच्चा है जो रानी मुखर्जी को बोलता है कि मत जा तू सिमरन, तू मत जा। ये जगह खजियार है। खजियार अगर आप लोग को कभी मौका मिले तो डलहौजी जाइए, वहां पे स्नोफॉल भी होता है। हमारा जो रीजनल हेडक्वार्टर है बनी खेत है, क्योंकि लोग नाम से ही पहले भाग जाते हैं कि अरे कहाँ है पता नहीं। और वहां पर वो पूरे फिल्म की शूटिंग हुई है, अगर आप लोग को होगा जाके देख लीजिएगा। जहाँ पे बच्चों का कैंप लगा है वो खजियार है। और स्विट्जरलैंड के जो चीफ आए थे, उन्होंने उसको मिनी स्विट्जरलैंड डिक्लेयर किया। तो हमारी जो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतनी खूबसूरत जगहों पे हैं। हाँ ठीक है, ठंड रहती है, ये रहती है, और इतना शानदार क्लियर कट आसमान है कि कई लोग जो आजकल बच्चे, लेकिन फिर से एडवेंचर के बच्चे आने लगे हैं। कई लोग को एस्ट्रोनॉमी का शौक है, अपना पूरा टेलीस्कोप वगैरह के आके अपना अलग से स्टडी करते रहते हैं। कुछ लोगों को ट्रेकिंग का शौक है, वो ट्रेकिंग करने जाते हैं।
बट स्टिल वो नंबर इतना कम है कि हमको टैलेंट अट्रैक्शन भी एक हमारे लिए बड़ा मेजर चैलेंज है। बट हम धीरे धीरे हमने अपने, अब वहां पर आपका ये भी होता है, पैराग्लाइडिंग होता है, काइट फ्लाइंग होता है, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन नाम से कोई नहीं जानता। सब कुफरी जानते हैं, सब मनाली जानते हैं। मनाली, कुल्लू मनाली में हमारा पार्वती टू है। पार्वती इसलिए, कोई भी डैम जनरली नदी के नाम पे होता है, तो नदी का नाम है पार्वती, कोई नहीं जानता पार्वती कहाँ है। लेकिन कुल्लू मनाली जैसे ही बोलते हैं तो अरे कुल्लू मनाली है। तो इस तरह से हमने भी अपना थोड़ा चेंज किया है मार्केटिंग, फॉर ये कि लोगों को बताने की कोशिश करें कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये जगह यहाँ है जहाँ लोग पैसे खर्च करके हफ्ता भर रहते हैं। आजकल यंग जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, वो तो 10-10 दिन तक पड़े रहते हैं, बट हमारे लोग वहां रहते हैं। अब आप जैसे अरुणाचल जाते हैं, अरुणाचल में द रिवर इज कॉल्ड सुहानसरी, वो ब्रह्मपुत्रा का ट्राइब्यूटरी है। उस पे हम 2000 मेगावाट ला रहे हैं। इसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा कि कैसे हमने एमओयू साइन किया। आपका सपोज जो मतलब राइट, मेरे राइट हैंड की तरफ ये है, आसाम है, और लेफ्ट हैंड की तरफ अरुणाचल है। बीच में जो डिमार्केटिंग लाइन है जो दोनों को विभाजित करती है, वो है आपकी अ, सुबनसिरी रिवर नदी है। उस पर 2000 मेगावाट का प्लांट बना रहा था। उसको बीच में पहले प्राइवेट सेक्टर आया था, फिर वो भाग गया, फिर ये आया, फिर वो भाग गया। बाद में हमको दिया गया कि भाई डैम तो आप ही बना पाएंगे। इसका एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब भूटान में जब पुनः सांगचुक डैम था, उसमें पहले कुछ प्राइवेट सेक्टर्स गए थे, फाइनली नहीं आया, एनएचपीसी उतरा और एनएचपीसी ने उनको डैम बना के दे दिया। और भूटान आज तक हमको रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो कुछ इतने स्ट्रिंजेंट क्लॉज लगाया है कि हम बोले हमारे, और कुछ वो हमारे जो स्टैट्यूटरी नॉर्म्स है वहां नहीं होते, जो हमारे एम्प्लॉय स्पेसिफिक है। इसलिए हम अभी तक उसमें तैयार नहीं है कि प्रोविडेंट फंड वगैरह का वो कंट्रीब्यूशन का इशू रहता है। अदरवाइज दे स्टिल वांट एनएचपीसी। अंडमान में जो एक ही हाइड्रो पावर था, वो पूरा एनएचपीसी ने बना के दिया था। हमने बना के रेडी करके चला के 1 साल उनको सिखा के हम हट जाते हैं। हमारे जो अपने डैम से उसको चलाते हैं। मैं वापस आता हूँ सुहानसरी पे। तो सुहानसरी पे एक एमओयू साइन होना था बिटवीन ट्राइपार्टाइट, माने त्रिपक्षीय बोलते हैं, तीन उसमें रहते हैं साइनिंग अथॉरिटीज, एक आसाम, एक अरुणाचल, और एक एनएचपीसी। अब साहब बात ये थी कि अच्छा, वहां बड़ी मूंछ की लड़ाई भी होती है कि साहब मैं अरुणाचल नहीं जाऊंगा, अरुणाचल कहता है साहब मैं आसाम नहीं जाऊंगा। अब हम पिस गए बीच में। अच्छा, दोनों जगह की स्टेट फोर्स भी बोलते हैं कि साहब हम अपने टेरिटरी से बाहर नहीं जाएंगे। तो आप अंदाज लगाएं कि उसको सॉल्व किया था हमारे जो एचआर हेड थे। उन्होंने इतना शानदार तरीका निकाला। उस पे एक ब्रिज थी, ब्रिज नो मैंस लैंड था बिटवीन द टू। उस ब्रिज पे सेंटर पॉइंट को पहले नापा गया कि सेंटर पॉइंट कहाँ है। वहां तक दोनों आने को तैयार हुए कि आधा सेंटर मेरा, आधा सेंटर तेरा। बीच में हमारी एक महिंद्रा की जीप खड़ी थी, बोलेरो। जनरली इस जगह पे बोलेरो या फॉर्च्यूनर ऐसी चीजें चलती हैं। कार वगैरह चलाना थोड़ा मुश्किल रहता है। कार रहती है सिर्फ प्लांट्स के अंदर में, एचओपीस के पास, लेकिन उनके पास भी एक रहती है, बिकॉज हिली टेरेन्स में। दोनों तैयार हुए, पुलिस के बदले सीआरपीएफ आ गया वहां पे। सीआरपीएफ ने आया और बोनट पे एमओयू साइन हुआ, और वो उसके बाद प्लांट का काम शुरू हो गया। अब ये जो चीजें हैं ना, ये जो रियली जो एम्प्लॉय रिलेशंस या इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लोग हैं ना, उनके लिए ये मतलब ये स्टोरी हो सकता है आप लोग को मजा ना आ रहा हो, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि बिल्कुल रियल लाइफ है। आपको वहीं पे डिसाइड करना है, वहीं पे काम करना, खत्म करना है, और आपको एमओयू साइन करके यू हैव टू नारियल फोड़ के स्टार्ट हो जाना। और आज वो हमारा प्लांट बिल्कुल रेडी है। और अभी 29th हम सब वहां जाएंगे, बिकॉज एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम अपने लोगों को उत्साह बढ़ाने, उनको इंकरेज करने जाएंगे। और 29th को उसके फर्स्ट यूनिट रोल करेगा। और जिस दिन वो रोल करेगा, उस दिन से वो पावर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और दोनों इसमें आसाम और अरुणाचल दोनों मेजरली बेनिफिट होंगे। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट मैंने आपको बताया कि कैसे हमारा हम चीजों को टैकल करते हैं। अब जनरली जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर या अदर सेक्टर्स है, उसमें यूनियन एसोसिएशन का बहुत रोल नहीं होता, या रहता भी नहीं है। आईटी में तो बिल्कुल ही नहीं है। बट मैं आपको,
आपको ये बता दूं कि एनी पावर सेक्टर में आ, इसका रोल बहुत ज्यादा होता है, लेबर लॉस का। और कोई भी अगर आप कल को सीईओ बनते हैं, तो सीईओ बनने के बाद यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी थिंग्स, बिकॉज कुछ ना हो तो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट आप पे लागू हो जाता है। तो मैं जनरली देखा हूं कि आजकल के जो लोग हैं उनको थोड़ा लेबर लॉस की ओर इंक्लिनेशन नहीं है। बट जहां पर यूनियन एसोसिएशन आता है, और हमारे यहाँ जब आता है तो सेंट्रल लीडर्स आते हैं, जनरली एमपीज होते हैं, दे आर आइदर इंटर, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन का, C2 सेंट्रल यूनियन ऑफ ट्रेड यूनियंस नहीं वो कम्युनिस्ट का है, एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, BMS भारतीय मजदूर संघ, इस तरह के जो चीफ होते हैं जनरली दे आर ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो आपका नॉलेज भी लेबर लॉज में होना चाहिए, या आपके पास उस तरह का आदमी होना चाहिए, क्योंकि जब एक MP आते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, आप उनके साथ मीटिंग करते हैं। हमारे जितने भी वेज नेगोशिएशन, बिकॉज हमारा लेबर इंटेंसिव है, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर कंस्ट्रक्शन के टाइम में रहे, चाहे आपका ये रहे, तो इसका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपके ऊपर इनैक्टमेंट्स लागू होते हैं। आपकी कोई भी अछूता नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया तो नहीं, लेकिन इवन बोइंग्स में, अमेजन में इंटरनेशनली यूनियन खड़े होना शुरू हो गए। तो ये चीजों से आपको धीरे धीरे अपने आप को, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आपका बंदा है जो इसमें नॉलेजेबल है। बिकॉज जब मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग में इट्स अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, और ये होती है, ये हमारे कोर सेक्टर में तो होती होती है। और आप जितना नॉलेजेबल हैं उतना सामने वाला कमजोर होता है, अगर सामने वाला अगले टेबल के अगले साइड में अगर वो स्ट्रांग है तो उतना मजबूत होता है। अब हम आपको एक और चीज बता देता हूँ, दैट वो कहलाता है पॉश। पॉश भी आप लोग सब जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। जनरली मैं नहीं जानता बाकी जगह, लेकिन मैं अभी तक मैंने जितने भी CPSEs में देखा है, NTPC में मैंने कोई ऐसे केस नहीं देखे। जो एक केस आया था वो भी बड़ा अजीब सा, जब उसको इन डेप्थ निकाला गया तो बहुत ही अजीब था। वो कहीं वो अजीब सी चीज थी, मतलब वो मैं नहीं बोलना चाहता, वो पॉश था ही नहीं, कुछ और था, उसको पॉश का एंगल देने की कोशिश हो रही थी। और NHPC में ऐसा कोई केस नहीं है। लेकिन हम विमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज्यादा हमारे यहाँ काम होता है। मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताता हूँ, कुछ ऐसी यूनिक हमने पॉलिसी बनाई हुई है जो कि अभी CPSCs में भी नहीं है। हम एक चीज कह देते हैं, मातृत्व। मातृत्व हम देते हैं हमारी उस बच्ची को, उस बहन को जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयड है, और ड्यूरिंग वर्क, अगर जब वो शी इज इन अ फैमिली वे, जब वो फैमिली वे में होती हैं, तब उनको अगर वो काम करना चाहती हैं तो हम उनको पूरी फैसिलिटी, उनके उनको कुशन का जो टूल दे देते हैं, पैर ऊपर रखना हो, वो जिस तरह से अपना रूम सजाना चाहती हैं वैसे रूम सजा देते हैं। उनको कट फ्रूट्स जो चाहती हैं वो, एवरीथिंग बाई कंपनी होता है। अगर वो दूध लेना चाहती हैं, दूध, कुछ लोग दूध नहीं लेते, वो दही लेते हैं या पनीर लेते हैं, उस तरह की चीजें हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, सो दैट कि आप पूरा कोजी इन्वायरमेंट में काम करें जब तक वो करना चाहें। उसके बाद तो मैटरनिटी लीव आ जाता है, और पेड चाइल्ड केयर लीव 2-2 साल का आ जाता है, वो अलग चीज है। एक और जो हमने लीव इंट्रोड्यूस किया है वो कहलाता है पिंक लीव। पिंक लीव में ड्यूरिंग दी एवरी मंथ एक बच्ची को या महिला को वो सिर्फ डिक्लेयर करेंगे कि शी इज गोइंग साइकिल स्टार्टेड, और उस दिन का वो उनको एक दिन का छुट्टी दिया जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना ही कोई एग्जामिनेशन होगा, हर महीने एक दिन का। तो ये भी बड़ा नोबल है। और एक विप्स होता है, विमेन इन पब्लिक सेक्टर, इसमें काफी अप्रिशिएशन मिला, बिकॉज और हम एक और मिथ था कि हम विमेन एम्प्लॉयज को अकेले नहीं भेज सकते अब्रॉड ट्रेनिंग। हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम एक भी मेल नहीं, होता था कि एक आध मेल रख दो वहां जाके देखेगा, बोला ऐसा क्या है। हमने अपने 4-5 महिलाओं का एक टीम बनाया, उनको बोला कि आप लोग अकेले जाएंगे अब्रॉड ट्रेनिंग। और वो गई, लौट के आई, एक तो ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, आई ओपनर था, और इतना खुश थे कि सर, मतलब वो जो एक 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 रहता है मिथ कि एक साथ में मेल अटैच करो बॉल भाग पड़ेगा, बोला हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे और आपने ट्रस्ट किया। और हमारा एक और हम करते हैं विमेन आउटबाउंड ट्रेनिंग विदाउट एनी, ठीक है फैकल्टी हो सकते हैं आए जो भी एजेंसी आती है, बट विमेन आउटबाउंड जो ट्रेनिंग होता है उसमें भी सिर्फ विमेन जाती हैं, वो रिवर क्रॉसिंग करें, रिपलिंग करें, जो करें करें, बट वो हम उनको अलाउ करते हैं। तो इस तरह से हम अपना एक जो DEI बोलते हैं ना, डाइवर्सिटी इंक्लूजन, वो करते हैं। हमारा जो मैन पावर है उसको हमको तैयार रखना है। लेकिन जो आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत कम है हमारे यहाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए कि आपको कोविड टाइम्स में
एक टाटा का पावर को हैक कर लिया गया था, तब से पावर प्लांट्स को आईलैंडिंग करके रखा गया है। तो जनरली रिक्रूटमेंट में या एचआर प्रोसेस में एआई हम यूज करते हैं। या पोस्ट रिटायरमेंट जो हमारा है, हमारा पोस्ट रिटायरमेंट भी बहुत तगड़ा रहता है, कंप्लीट मेडिकल मिलता है हस्बैंड वाइफ को। तो उस पे हमने अपना एआई चैटबॉट वगैरह और एआई से सपोर्ट करते हैं फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ बिल, रिक्रूटमेंट में स्क्रीनिंग करने के लिए। साथ ही साथ हम साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो एनालिसिस है वो करने के लिए कि बंदा सही में इंटरेस्टेड है आने के लिए कि नहीं, बिकॉज रिक्रूटमेंट में साइकोमेट्रिक भी रखते हैं और उसको एआई से कर लेते हैं। उसके बाद बाकी ग्रुप डिस्कशन वगैरह में वो फिल्टर आउट हो जाता है। तो हमारा पहले होता था कि हमको पता ही नहीं चलता था, हम ऑफर इशू करते थे और गवर्नमेंट का नाम से है कि 90 डेज तक उसके पास 5 या 6 ऑफर होता है, गेट का टॉपर से ही आते हैं लोग, वो कहीं भी चला जाता है छोड़ के और हम उसको रोक नहीं सकते। आफ्टर 90 डेज देर इज अ। तो इस तरह की चीजें हम एआई में यूज करते हैं, लेकिन जनरली पावर सेक्टर को थोड़ा बचा के रखा जाता है कि अगर हैक हुआ तो पूरे इंडिया को भी ब्लैकआउट किया जा सकता है। थ्रेट भी रहता है, क्योंकि हमें आईबी से ट्रेनिंग भी दी गई थी कि पावर सेक्टर अंडर थ्रेट था। और कई बार ऐसी कई जगह आपका आपका मोबाइल अंदर अलाउ नहीं होगा, आपको जाना होगा वो सिंपल नोकिया 3310 टाइप के मोबाइल के साथ, जहां में ना कोई नेट है ना कुछ, इनसाइड द प्लांट ऑफिस वगैरह में, टू मेक इट सिक्योर। पूरा सीआई सबसे सिक्योर्ड रहता है, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ कि जो कोविड था, कोविड में लोग वर्क फ्रॉम होम थे और हम कंटिन्यूअस ऑन जॉब थे। हमारे लोग भी इनफेक्ट गलती से, एक तो हमारा बहुत स्ट्रिक्ट था कि अगर कोई इन्फेक्ट हुआ तो, और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कलेक्टर और एसपी थे, दे आर विथ अस। कुछ भी जरूरत पड़ने से हम रातों रात गाड़ी निकलती थी, टेक्नीशियन को इंजीनियर को ले आती थी, कहीं गाड़ी नहीं रुकती थी अक्रॉस इंडिया। उस पर इतने सारे पासेस लगे होते थे डिफरेंट, और वो 24 घंटे के अंदर, माने हमने एक दिन भी हमारा 2 साल पावर प्लांट को विदाउट सर्विसिंग हम चलाते रहे, बिकॉज पावर नहीं जाना था 2 रीजन से, सो दैट कि हॉस्पिटल्स को पावर रहे। हम लोग ने अपना सेपरेट हाई डिपेंडेंसी यूनिट क्रिएट कर दिया गया था। और मैं बिल्कुल गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ लोग इन्फेक्ट हुए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही और एक भी डेथ नहीं हुआ, इतना तेजी से एक्शन लिया गया। जो लास्ट मोमेंट पे कहीं से लोग आ गए उनको हम नहीं बचा पाए, जिनका 80% ऑलरेडी खराब हो गया था। तो कोविड में इस पे आईएम हमारे साथ करना भी चाहता है, लेकिन अभी मैं भी ट्रांसफर हो गया था, वो भी ट्रांसफर हो गया। आईएम इस पे स्टडी करना चाह रहा था और वो अभी भी उनका ऑन है, स्टडी ऑन है, वो कभी भी करेंगे, सो दैट कि अदर सेक्टर बेनिफिट्स हो। और जो एक और चीज है कि जो एज ए एचआर गाई मुझे ये भी मौका मिला कि मैं जब उत्तराखंड में ग्लॉफ हुआ था, सो आई वाज मेड रेस्क्यू एंड रिलीफ हेड। वो भी अपने आप में एक बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था, बिकॉज लोग तो बह गए थे, लेकिन कुछ लोग के मैं कैसे बताऊं, छत विछत बॉडी मिल रही थी और हमको रिलीफ भी करना था, खाना पहुंचाना था, कंपनसेशन पे करना था, और साथ ही साथ उनके दिवंगत जो परिवार के सदस्य थे उसको भी खोजना था। उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग, बिकॉज आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सब सीआई सब साथ थे। कई चीजों से हमको भी ट्रेन किया गया था कि कैसे पता चले कहाँ पर कोई भी मानव अवशेष है। तो ये भी अपने आप में एक अजीब सा एक्सपीरियंस था। लेकिन इसके साथ ही साथ हम पूरे तपोवन विष्णुगढ़ जो जोशीमठ कहलाता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ने इतने मेडिकल कैंप्स लगाए, और आप चकरा जाएंगे कि जहाँ लोग कंटिन्यूस पहाड़ चढ़ते और उतरते रहते हैं, वहाँ जो सबसे बड़ा जो बीमारी है, एक तो सनरेज इतना तगड़ा है कि सोलर रेडिएशन से होता है, और दूसरा डायबिटीज है। मतलब डायबिटीज सुन के मैं भी चला गया, क्योंकि वहाँ जनरली इट्स अ मैट्रियर्कल सोसाइटी, महिला प्रधान समाज है और महिलाएं बहुत काम करती हैं, लेकिन डायबिटीज भी होता है। तो इस तरह की चीजों को भी हम लोगों ने वहाँ टैकल किया, उनका विश्वास जीता। और बीच में ये भी हुआ कि जो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है उसके चलते हो रहा है, लेकिन वहां के लोग हमारे साथ खड़े हुए कि साहब ऐसा नहीं है, ये तो ऊपर से कहीं से ग्लॉफ जो ग्लेशियल जो ग्लेशियर होता है वो फटा था और वो आया था, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके चलते फट रहा है। और कहते हैं नेट जीरो, नेट जीरो का लोग मतलब ये समझते हैं कि अब हम जनरेट ही नहीं करें कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस। साहब हर आदमी डेली CO2 छोड़ता है, तो आप जनरेट कैसे नहीं? नेट जीरो का मतलब ये होता है कि आप अगर 100 ग्राम अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला,
तो उस 100 ग्राम को खत्म करने का आप इंतजाम करेंगे, चाहे आप पेड़ लगाएंगे, चाहे आप अपना रिन्यूएबल सेक्टर को और नंबर बढ़ा देंगे, चाहे आप उतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लगा देंगे। 100 ग्राम से जो था, जो आपके एनवायरनमेंट में था, वो 100 ग्राम ही रहे, वो 101 ग्राम ना हो। और जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे अपना जितने भी ये मेजर्स हैं, आपका वो 100 से 99 हो जाए, 98 हो जाए, इस तरह से हो जाए। बट इसमें हमको भी अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो व्हीकल पोल्यूशन है, जो वो सबसे ज्यादा है। और आप शायद ही अपनी गाड़ियों को ढंग से चेक भी कराते हो। बदनाम तो हो जाता है थर्मल सेक्टर, लेकिन उसके यहाँ इतनी चीजें हैं कि उसके यहाँ उतना जनरेट नहीं होता। लेकिन जो व्हीकलर पॉल्यूशन है वो इतना ज्यादा है, धुआं छोड़ते रहता है गाड़ी। लेकिन टू व्हीलर्स तो बिल्कुल ही आप देखेंगे कई कई गाड़ी, लेकिन हम उस तरफ कभी भी अपना ये नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से ये इन ब्रीफ, बिकॉज पावर सेक्टर इतना लॉन्ग है कि एक में समाहित करना बड़ा ही मुश्किल है। तो अगर आप लोग के दिमाग में और कोई भी चीज है, तो आप लोग मुझसे बिल्कुल बकायदा आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जहां तक होगा मैं आपको कोशिश करूंगा। और मैं सबसे पहले एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा कि सुलोनी ने इनवाइट किया था, तो मैं मेरा फर्ज बनता है कि, बिकॉज जनरली पावर सेक्टर का जो हमारा, हम पर्दे के पीछे ही रहते हैं, क्योंकि बिजली हमेशा कंडुइट नहीं चलती है। तो आपने जो हमें मौका दिया थोड़ा बहुत अपना शेयर करने का, तो मैं पूरे सुलोनी यूनिवर्सिटी और आप सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। थैंक यू। Thank you, Mr. Lal. And on behalf of Shulni, we are, of course, very, very grateful to have you with us this morning, and also very inspiring to hear the stories. And I also want to share with everyone because, before I spoke to Mr. Lal, just like all of you, I was very not aware कि बिजली है, हम उसको काफी granted के लिए लेते हैं. But while talking to Mr. Lal yesterday, I have a new deep found respect for people like Mr. Lal and organizations like NHPC, NTPC, who are consistently pushing the nation forward. And thank you again, Mr. Lal, for joining us today. And I'm sure our students also had a very insightful time. Let's start with some questions. I have some of my questions as well. Um, Mr. Lal, so I work in corporate partnerships. The skills required in corporate partnerships is that I have to be data driven, I have to create value for my partners, and I have to be a good communicator. So, if someone was to consider a career in NHPC or any similar organizations, तो ऐसी कौन सी दो तीन core competencies हैं जो as a leader in HR that you would be looking for? देखिए, सबसे पहला तो जो कोर सेक्टर यू टेक एनएचपीसी और एनटीपीसी है, आप एचआर की बात कर रहे हैं, तो एचआर में हम सबसे पहला जो देखते हैं दैट इज द नॉलेज ऑफ, एटलीस्ट नॉलेज ऑफ लेबर स्टैट्यूट्स। बिकॉज कभी ना कभी आपको नेगोशिएशन टेबल पे उतरना ही पड़ता है, और एट वेरी यंग स्टेज उतरना पड़ता है, क्योंकि डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास सीधा हेड ऑफ एचआर नहीं जाता। वहां पे एक यंग एग्जीक्यूटिव जाता है। मैं जब हार्डली 25-26 साल का हूँ तब से मैं नेगोशिएशन टेबल पे जाने लग गया था। बिकॉज मेरी जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, दैट इज जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रांची, उसका यूएसपी लेबर लॉस है और आईआर है। और मैंने आपको बताया था कि मैं आईआर का आदमी हूँ। और मैं आपको बताऊं, कभी कभी बड़ा खेल होता है। जो देखिए, यूनियंस के लोग को मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ, जो उनके लीडर्स होते हैं ना, वो भी लेबर लॉस के मास्टर होते हैं। लेकिन वो ना किताबें लेके बैठते हैं। जब आप बैठते हैं ना डिप्टी लेबर कमिश्नर के सामने ऑन नेगोशिएशन टेबल, तो वो पहले पीएल मलिक की किताबें आती थी, जो जहाँ इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी, वो लेके बैठते थे। और हम उससे बड़ा टावर लेके फिर बैठते, पढ़ देखा, कोई देखता नहीं था। लेकिन सब दिखाए, तुम बोलोगे तो मैं रेफर करूंगा, वो जैसे एक वकालत में होता है ना। और फिर जी। चलता था। और कहीं कहीं पे जहां पे, अच्छा ब्रेक कैसे करते हैं, कहीं कहीं पे वो फंस जाते हैं, बिकॉज हम जर्नल्स देखते रहते हैं, वो जर्नल्स देखते नहीं। हम एक नया केस पुटअप करते हैं, इट्स एज गुड एज अ कोर्ट सीन। वहां पर वो कहते हैं कि नहीं साहब, इससे नया जजमेंट आ गया है और मेरे पास अभी नहीं है, मैं लेके आऊंगा अभी यहाँ पे इसको। अभी आप इसको ये अभी 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 अपने जो कोर्ट को यहीं पर रोक दीजिए। ऐसे करके वो अपना फेस से। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्राइक तो आप कर देते हैं, ठीक है, आपको पता रहता है कि ये स्ट्राइक इलीगल है, और हम उसको इलीगल डिक्लेयर करा देते हैं। अब उस जो नेताजी होते हैं, उनको फेस सेविंग चाहिए होता है। हम्म। तो फिर हम लोग क्या है कि ये दोनों एक ही थाली के, हमको उनके साथ साथ
कई बार बैठना भी पड़ता है, तो फिर हम कुछ रास्ता निकालते हैं कि भाई नेताजी का फेस बच जाए, क्योंकि कई बार नेताजी लोग बैठ जाते हैं कि मैं तो आमरण अनशन करूंगा, तब नींबू पानी तो पिलाना है उसको। लेकिन बड़ा चैलेंजिंग है, मतलब एवरी डे इज अ चैलेंज, और मजा आता है उसमें आपको। Right. कंटिन्यूस अपना जो ये है ना सोड, आप उसको कंटिन्यूस रेडी करते रहते हैं टू फेस द न्यू चैलेंज। Interesting. Thank you so much for answering that. Now let's talk about artificial intelligence. I think आज की डेट में कोई भी AI के बिना तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते. तो स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न यही है, एंड आई ऑल्सो स्पीक टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि कल को मुझे AI कैसे रिप्लेस कर देगा. तो मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि ना ना, NHPC में नहीं नहीं। I'm also of the same thought. I don't think replace होगा. We have to work with it. But from your position at NHPC, how is NHPC embracing AI and also including AI in its day to day, and also how humans are supporting that transition? देखिए, एआई में एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, स्ट्रीट स्मार्ट। Hmm. उसमें एक बड़ा खतरनाक प्रोडिक्शन है, एंड इट्स कमिंग वेरी फास्ट, दैट बाय 2047 द डे ऑफ सिंगुलैरिटी कम्स। और वो डे ऑफ सिंगुलैरिटी कहता है कि ये जितने भी हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो सुपर, जो वन ऑफ द जीनियस है, उससे ऊपर हो जाएंगे। Hmm. तो वो दिन बड़ा खतरनाक है, बिकॉज आपका फिर तो वो आपका जो कंट्रोल करना शुरू करेगा, ये एक प्रिडिक्शन कहता है। बट अब मैं ले आता हूँ जो सबके मन में बैठा हुआ है कि एआई रिप्लेस कर देगा। देखिए, सबसे पहला तो जो कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, तीनों कोर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईएनसी एंड सिविल, इसको आप एआई बना नहीं देगा। Hmm. एआई आपको सपोर्ट करेगा, आपको फास्टर डिसीजन देगा, फास्टर एनालिसिस देगा। मगर जब नदी में खड़ा होना हो तो एआई नहीं खड़ा होगा। अभी कोई Hmm. रोबोट भी उस नदी में नहीं खड़ा होगा, अभी टाइम लगेगा। अभी तो आपको ही आना होगा। ये तो हो गया टेक्निकल साइड में। अब हम Hmm. रिक्रूटमेंट में लेते हैं एआई, बिकॉज रिक्रूटमेंट में एक हमारा सीटीसी वगैरह बहुत तगड़ा है, हमारे पर्क्स बहुत तगड़े हैं, और हमारा, हम कहते हैं नौकरी के साथ भी, नौकरी के बाद भी हमारे जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो बहुत जी. शानदार है। तो हमारे यहाँ एप्लीकेशन बहुत आ जाते हैं, नॉन एक्स तो बहुत ही ज्यादा आ जाते हैं। उसको मैनुअल स्क्रीनिंग करने में या फिर वो एक्सेल वगैरह से स्क्रीन करने में समय लगता है, और जनरली आजकल प्रेशर रहता है कि विद इन फिक्स टारगेट आप कर लो। वहां पर हम एआई का Hmm. सपोर्ट हम स्क्रीनिंग में ले लेते हैं, दे डू इट वेरी फास्ट। और दूसरा जो एक होता है, आप किसी भी सरकारी कंपनी में जाते हैं ना, तो आपका एक करेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होता है। आप Hmm. जहां जहां भी रहे, हर जगह पुलिस थाने में अगर एक भी एफआईआर निकल गया और आपने छिपा लिया, तो इमीडिएटली आप स्टॉप हो जाते हैं। तो वो चीजें हमको एआई सपोर्ट करती है, लेकिन उससे ज्यादा हम एआई को नहीं लेते। मेरा साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, वो एक सेपरेट एजेंसी करती है। उसके रिजल्ट को जो हमको एनालिसिस करना होता है, हम उससे एआई लेते हैं। तो कोर सेक्टर में नहीं, मैं आईटी सेक्टर का नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कोर सेक्टर में। और दूसरा, मैंने जैसे बताया कि अभी हम अपना पूरा पावर सेक्टर को हम आइलैंडिंग करके रखते हैं, क्योंकि पावर अगर आपका हैक हुआ तो आपका वो दूर से ही कंट्रोल करना पड़ेंगे, कब स्विच ऑफ कर देंगे, कब स्विच ऑन कर देंगे। और अंदर में पूरा आईटी बेस्ड है, हमारा पूरा सिस्टम ईआरपी पे है, लेकिन एआई में नहीं। तो Interesting. हाँ, तो हमारा कोई भी, हमारा पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको लगता होगा कि हमारे पेपर ही पेपर है, हमारे पेपर है ही नहीं, Wow. एवरीथिंग। हाँ, और अब हम 24 घंटे काम पे हैं, मैं घर पे बैठ के भी फाइल क्लियर करता हूँ। So that's digitization, right, for कंप्लीट NHPC? डिजिटाइजेशन है, बट आउट आई हमारा अपना सेपरेट है, इतने फायरवॉल्स हैं। तभी मैंने आपको अपना पर्सनल मेल आईडी दिया था, क्योंकि आपका जी. मेल मेरे इस पे आता ही नहीं। Ji, ji, I remember that. Yeah. हाँ, So I want to add one or two things because you know AI के ऊपर, as I said, and thank you so much for sharing that. And this is for everyone as well. So I'll give you a small example of how I use AI. So AI मेरा काम मेरे लिए करता नहीं है. It works with me. So be curious about it. It's an incredible tool. अगर आपके दिमाग में कोई thought है, like for example, talking about education and what I do. So I know that आज की डेट में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, इफ यू आर स्टडिंग साइंसेस, यू आर स्टडिंग आर्ट्स, यू आर स्टडिंग हिस्ट्री, जियोग्राफी, हर एक चीज में एक टेक्नोलॉजी का इंटरसेक्शन है. ये दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नो, बट हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? So these are the things that you should be feeding into artificial intelligence to make
sense of your thoughts. इससे होगा क्या, you will become AI native, and you will also become a very clear and a very concise communicator. And those are also the very core skills that people like Mr. Lal are looking for, regardless of core competencies, regardless of uh, streams or anything. These are skills that will actually help you in becoming future proof, and of course, being a very, very smart worker. मैं एक चीज ऐड और करूंगा। आजकल जो पीपल यूज टू राइट अ कवरिंग लेटर ना, वो Right. मोस्टली चैट जीपीटी से जनरेट हो जा रहा है, और वो नेगेटिव होता है। बिकॉज फिर हम वहाँ एआई यूज करते हैं कि ये ओरिजिनल है या चैट जीपीटी है। Right. Of क्योंकि course, yeah. हाँ, बिकॉज फिर लगता है कि अच्छा, हमारे यहाँ कोई रोक नहीं है, आप हिंदी में भी हाँ आवेदन कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी, तो फिर हमको लगता है कि अगर ये एक एप्लीकेशन भी अपने से नहीं लिख रहे हैं, बिल्कुल। तो वो भी एक नेगेटिव होता है। क्योंकि लोग बहुत जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि अपना एप्लीकेशन लिखिए। और हम अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देते हैं उतना, क्योंकि भाई हमारी भाषा इंग्लिश फॉर अस इज अ फॉरेन लैंग्वेज। आपने अच्छा हाँ, लिखा खराब लिखा उससे मतलब नहीं है, आपके कंटेंट क्या है, बिल्कुल। वो चीज देखा जाता है। Right. So talking about smart workers, so let's go back in time, right? So you've been in the industry for so long. How has the skill set changed जब आप questions पूछते हो interviews में? 25 साल पहले there was a certain way of hiring people, right? And I think you already touched upon the psychometric evaluations and all of that. But moving forward for the next 25 years, how do you think recruitment will shape up in your sector? And what are the skills that people usually should start now? मतलब उसमें कुछ चीजें तो कभी चेंज नहीं हुई, बिकॉज जनरली ये कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर्स आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। और हमने कोशिश की थी चेंज करने की, बट क्या होता है कि वी आर मतलब हमारे ऊपर सीपीएससी के ऊपर इतने केसेस हो गए। हम इसमें भी गए थे फॉर जेवियर्स एंड आईआईएम्स एंड आईआईटीज, हम कैंपस गए थे। अब Hmm. उसमें कुछ और प्राइवेट रिप्यूटेड ही कहूंगा मैं उनको, दे वेंट टू कोर्ट। उन्होंने कहा कि साहब, आपने कैसे कह दिया कि आईआईएम ही बेस्ट है और मैं खराब। अब कोई एनआरएफ रैंकिंग वगैरह उस जमाने में होता भी नहीं था, तो हम कुछ उसको कंटेस्ट कोई सीपीएससी ढंग से नहीं कर पाया है। Hmm. तो फाइनली हो गया कि नथिंग डूइंग, आप अपना। अब हमने जो उसको कैसे किया, पहले हम हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक रिटन टेस्ट कराता, उसका वाया मीडिया निकाला गया कि गेट होता है, Hmm. गेट एग्जाम फॉर टेक्निकल्स एंड नेट फॉर नॉन टेक्निकल्स। Right. उसका जो स्कोर है, उससे हम सबसे पहले ऑफर करते हैं। लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि अगर आप लोग देखेंगे, मेड इजी वगैरह करके संस्था आ गई है, वो सबको गेट का ऐसा तैयारी करा देती थी ना कि जो बच्चा का परसेंटाइल तो बहुत हाई रहता था, लेकिन जब, बिकॉज हमारा जो इंटरव्यू बोर्ड होता है ना, उसमें आईआईटी के प्रोफेसर रहते हैं, डीटीयू के प्रोफेसर रहते हैं, इंडस्ट्रियल ये रहते हैं, और जनरली एक कोई सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट रहता है जो चेयरपर्सन होता है। वी नेवर इंटरफियर, सो दैट कि हमारा इंटरफेरेंस हो ही नहीं पाया। वहां पर हम देखें कि साहब गेट का स्कोर तो बिल्कुल 99 है, लेकिन आप एक रैंकिन साइकिल होता है थर्मल में, आप वो भी नहीं बता पा रहे हो जो बेसिक है, उसका ड्राइंग भी नहीं खींच पा रहे हो। तो धीरे धीरे जब हम लोग और एनालिसिस पता चला कि अच्छा, वो कोचिंग सेंटर्स ने सब गेट तैयार करा दिया, तो फिर हम उससे निकलने के लिए गेट हमको करना ही करना है। Yeah. देन हमने कहा कि साहब अब हम अपना, और अच्छा उसमें जो बहुत अच्छे थे, उनके पास 5-5 ऑफर थे, और एक भारत सरकार ने बोला 90 दिन तक आप रोक नहीं सकते। ऑफर दे दिए, वो ज्वाइन किया, उसको अगर उधर से आ गया तो उधर भाग जाता है वो। तो फिर हमने अपना साइकोमेट्रिक लाया। साइकोमेट्रिक के बाद बहुत लोग नहीं आए थे साइकोमेट्रिक, द मोमेंट आप साइकोमेट्रिक के ना, कई लोग पीछे हट गए। तो एक Hmm. वो स्क्रीनिंग हुआ। दूसरा, हमने अपना एक पूरा पहले हमने इंटरव्यू वगैरह एग्जीक्यूटिव के लिए, नॉन एक्स के लिए कोई इंटरव्यू नहीं, Hmm. उसमें इंटरव्यू जीडी और एक ग्रुप टास्क करके वहां से हम सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो हमने इस तरह से अपना चेंजेस किया, बट हमको गेट तो रखना ही रखना। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको अलाउ कर दें, क्योंकि हम जब अपना टेस्ट लेते थे ना सर, तो दोज हाँ, आर रियली इंटरेस्टेड वही उस परीक्षा में आते थे, क्योंकि वो देखते थे कि आना है नहीं आना है। अभी तो गेट से हम हमको तो जो टॉप से उठाए उसको हमको ऑफर कर देते हैं। right. तो वो एक चीज है। Mhm. तो So इस तरह very से हमारा, robust हाँ। hiring process. हाँ, बट इसमें एआई का बहुत यूज है, यहाँ जी, पे एआई का बहुत यूज है, बट एआई जैसे यू सेड, इट इज विथ मी और इट इज ओनली सप्लीमेंटिंग मी, नथिंग एल्स। yeah. बट हमने अपने लोगों को एआई का भी सेशंस करवाया है,
और जो सबसे पहला सेशन हमने कराया वो चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब हम लोग किए, चेयरमैन किए, सो दैट कि दी यंग फोर्स शुड नो कि भाई जब बोर्ड, जो हमारे तो हम तो सब अब तो सफेद बालों वाले हैं ना, जब ये एआई सीख रहा है तो हम भी सीखें। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट ऑल्सो इज इन जो हमारे को फाउंडर्स, जो हमारी मिशन स्टेटमेंट है, दैट लर्निंग शुड बी लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस. यस। सो आई थिंक दैट इज वेरी इन सिंक विद व्हाट यू जस्ट सेड. बिल्कुल। So, and sir, I think we are almost at the end of time. I think we've already exceeded time, but um, आई एम सॉरी इफ आई behalf क्रॉस द लिमिट। no, no, sir, not at all. We are glad to have you. Every minute with you is precious. And in summary, I just want to ask one more thing. So, because most of us, and including myself, we are all lifelong learners as well. बहुत कुछ सीखना है अभी life में. And of course, we have to learn from people like you. So, in terms of healthy habits, right? So, what is the one thing that, and we all can find half an hour, 1 hour in a day. So if we were to spend that 1 hour productively, uh, and this is for the students, how would you spend that hour to ensure lifelong learning and success and mindset and all of that? देखिए मेरा अपना तो एक डिफरेंट है। जो मेरा, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कम से कम जैसे जैसे या कहें उम्र का तकाजा है, मैं 15 से 20 मिनट तो मैं पूजा में बैठता हूँ ध्यान। पहला काम तो मैं वही करता हूँ। Hmm. ये मैं नहीं कह रहा सबको ही करे, लेकिन वहां से क्या होता है कि वहां से मेरे को लगता है मेरी बैटरी चार्ज हो गई। दूसरा है कि मैं जो सबको बोलना चाहता हूँ कि मैं लोकल जो न्यूज़पेपर्स हैं वो जरूर देखता हूँ, वो जिस भी लैंग्वेज का हो। मेरे को ज्यादातर हिंदी मिली तो मेरे को दिक्कत नहीं है। Hmm. वो मेरे को, वो एक मेरा इंक्विजिटिवनेस को वो जिंदा रखता है, आसपास या क्या घटना घट रही है, क्योंकि सबसे फास्ट न्यूज लोकल न्यूज़पेपर में आते हैं। जी. तीसरा है कि अगर मौका लगा, अगर मौका लगा कोई नई चीज सीखने का, तो मैं जरूर सीखता हूँ। और एक जो है, जो कि इट इज अ प्रूवन थिंग ऑफिस में, और हमारे यहाँ कोई रोक भी नहीं है, एक तो एक हल्का सूदिंग म्यूजिक चलते रहता है बैकग्राउंड में, मतलब आप आएंगे भी तो डिस्टर्ब नहीं होगा। और मेरे साथ एक और चीज है कि मेरे रूम में म्यूट है, लेकिन न्यूज हमेशा चलते रहता है, तो कभी जी. कोई अचानक घटना दिख गई तो मैं मालूम रहता है। और खाना जब लंच होता है, लंच के बाद में एक पावर नैप जरूर लेता है, ऑफिस Very नोज। important. Very, very important. लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है जैसे अपने मोबाइल में आपने 20 मिनट के लिए लगाया, फास्ट चार्ज से चार्ज हो गए। हाँ. और एक चीज जो मैं कभी स्किप नहीं करता हूँ, ना ही मेरी, जो मेरी रॉक सॉलिड सपोर्ट है मेरी वाइफ, वो ऐसे जाने नहीं देती, कि जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो मैं हेवी ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ, क्योंकि फिर खाना खा पाऊँ ना खा पाऊँ, कई बार हम अचानक पार्लियामेंट्री सेशन में चले गए तो गए, तो फिर वो 4 बजे वहां होता है, लेकिन 5 बजे होता है, कभी 4 बजे होता है। तो वो एक रूटीन मैंने बना के रखा हुआ है। तो घर से जब निकलते हैं ना, तो कहते हैं ना, बख्तर बंद तैयार होके तो निकलते हैं, तो वैसे निकलते हैं, फिर कोई चिंता नहीं रहती है। ये मैंने अपना पर्सनल शेयर किया। और मेरे पास एक पेट है, शाम में आके उसके साथ जरूर खेलता हूँ, वो सब खत्म कर देती है। मैं नहीं कह रहा पेट रखिए, लेकिन वो वो मेरा जो जितना भी ऑफिस का जो भी रहता है, वो भी उसके साथ 10 मिनट में एवरीथिंग इज ओवर। Excellent. I especially like the last part. I also have two dogs at home, and I know exactly what you're talking about. हाँ, So, सो जो yeah, पेट रखेगा वही समझेगा, अदरवाइज तो बिल्कुल. मैं बट आई डोंट, मैं कोई प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूँ। No, no, of course, of course, of course. So, last question. If anyone wants to read a book, I'll actually, it's a two-part question. Someone reading, what book should people read in their 20s, and what book should people read in their 30s? देखिए मैं तो ज्यादातर जो बुक्स पढ़ा था वो पढ़ा था, एक जो बुक जो मैंने 20s में पढ़ा था, मेरे फादर ने मेरे को दिया था, फादर ने खरीदा था, अब तो ही इज नो मोर, बट वो इनकी बुक थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। वो बुक मेरे फादर, जब मैं मैनेजमेंट पास आउट करके निकल रहा था, तो वो बुक की कॉस्ट थी ₹2.60। बिफोर सिक्सटीज का बुक था वो, आज तक मैं संभाल के रखा हूँ। Excellent. तो वो बुक बहुत शानदार था। और बाद में कई जगह मैं जो ट्रेनिंग वगैरह अटेंड किया, लेकिन उसमें लोग घुसते नहीं है, और मैं अभी भी कर रहा हूँ, वो है गीता। गीता को आप पढ़ते जाइए, समझ में पहली बार तो आता ही नहीं है, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। और देखिए मैं मतलब मैं थोड़ा
ऐसे तो पढ़ाया गया हमको भी पूरा, रशियन थिंकर्स, अमेरिकन थिंकर, जापानीज थिंकर, बट हमारे जो ओरिजिनल मैनेजमेंट थिंकर्स थे उनको हमने भक्ति काल करके उड़ा दिया सर। मैं दो सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि टाइम एक्सीड कर रहा हूँ। जैसे इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। रहीम थे, रहीम के दो लाइनर थे सर, वो सब कुछ कह देता था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर वो ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इससे बड़ा कौन सा चीज है सर। और एक 360 डिग्री फीडबैक, चारों तरफ 360 360 360 360 होता है। कबीर दास क्या कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल। दैट इज 360 सर। लेकिन हमने उनको एक्सेलेंट। धीरे से, जो लॉर्ड मैकनली आए ना, धीरे से उसको भक्ति काल सुक्ति काल करके वो पूजा पाठ में उसको घुसा दिया गया, विच इज अ मैनेजमेंट थॉट। तो मैं जनरली, देखिए मैं जहां भी जाता हूँ, मैं अभी पहला मेरा इस तरह का सेशन है, बिकॉज मैं जनरली, मेरे को मिलते रहता है, तो आज मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैं जनरली अपने थिंकर्स को कोट करता Excellent. Thank you हूँ so मैं। much, Mr. Lal. That was very, very profound. And please do visit us at Shirley. आपको हम बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट में पराठे खिलाएंगे. We have some incredible नहीं, food over मौका लगा there. तो जरूर आएंगे, बिकॉज बिल्कुल मैं आइएगा सर. इंटरेक्शन में मुझे ज्यादा मजा आता है। So बट we'll of थैंक्स course. थैंक्स अ लॉट टू सुलिनी, बिकॉज मैं भी मेरे को एक नया स्टाइल मिला। Right. No, sir, thank you to you for finding time on your day off and talking to us. We really, really appreciate it. And on behalf of Shulni, we hope to see you again soon. And That thank will you, be fun. students. I hope you have some incredible feedback to take back from today's session. It's very simple, just small daily consistent habits will, of course, reap long-term benefits and change, as Mr. Lal pointed out. And he's been doing this for many, many years now. And Mr. Lal, thank you again. And Thanks for a those lot, of man. you who are, sorry? नहीं, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत Our धन्यवाद, pleasure. Our शुक्रिया। pleasure. So, and those of you who are interested to ask more questions, we are sorry, time is time. And अगर आपके कुछ questions हैं, please let your coordinators know. We'll put all of them together and we'll send them to Mr. Lal and let's see आप मेल कर how दो, we can. आप मेल बिल्कुल. कर दो, हाँ। बिल्कुल हम कर देंगे. And you can also find him on LinkedIn. I think that's in the message that you received as well. And with that, I think we can go ahead and close the session. Again, thank you, Mr. Lal. I really, really appreciate your time. And we look forward to welcome you again soon. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you. Bye bye, everyone. Have a nice day. Have a great weekend. Thank you.